لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ کہا کرتے تھے 2018 میں عمران خان صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, 2024 میں کوئی اس میں کسی کو شک نہیں ہے بالکل. اچھا, سلیکٹڈ اس طرح کے تھے کہ جس کی مثال پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی. اب کہہ رہے ہیں اب مثال بننے لگی ہے, اگلا وزیر اعظم بھی سلیکٹڈ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, پولنگ ایجنٹس جو ان کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو غائب کیا جا رہا ہے, ان کے لوگوں کو اٹھا کے وہ چلا کہتے ہیں جی, چلا کاٹ کے آتے ہیں, then they're changing parties. آپ دیکھیں کہ ایک نظام موجود ہے, اگر کوئی ایسی بات ہے, میں آپ کو deny it. نو میں نے کہا ایک نظام موجود, اگر کوئی ایسی بات ہے تو جا کے ان کو الیکشن کمیشن سے یا ہائر جو فورمز ہیں ان سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر کہا کہ 2019 کے اندر, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا الیکشنز ہوئے ہوئے, تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ جناب پنجاب لے لیں آ کے. یہ خواجہ آصف صاحب نے میرے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. یہ خواجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں نا. آپ کی اور وہ کہہ رہے ملاقات ہوئی ہے پھر جا کے, نہیں آپ کی اجازت کے بغیر تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس وقت, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, نہیں اس کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی. نہیں پوائنٹ یہ بات نہیں ہے. شہباز صاحب, جو آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی تھا خان صاحب کے خلاف, اس کے اوپر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیسکلی, دیکھیے بات یہ ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ لاکھ اس کی مخالفت کرتی ہو, اس کی حمایت کرتی ہو, وہ ان ووٹرز نے دینا تھا جو پارلیمان کے اندر ہیں. خان صاحب نے اس کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف کافی انہوں نے وہ میر جعفر, میر صادق اور اس طرح کے جلسے وغیرہ کرنے شروع کیے. فار مومنٹ آئی تھاٹ کہ یہ تو بالکل, جو کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا, لیکن نواز شریف نے کبھی لیکن نام لیا ان کا پھر بھی گجرانوالہ کے جلسے میں. ایکچولی میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ گئے تھے گجرانوالہ کے جلسے میں, آئی واز سینگ کہ کتنے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں بڑے میاں صاحب, اس وقت کے بڑے میاں صاحب اور اب کے بڑے میاں صاحب. اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا نام لیا, میاں محمد نواز شریف نے مجھے ایک مثال بتا دیں, ایک مرتبہ بھی میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف یا سالار کے خلاف کبھی بات تک کی ہے؟ مجھے بتائیے. گجرانوالہ کے جلسے یہ تو بتا رہا ہوں, انہوں نے جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے 2018 کے الیکشن لینے کے, آپ ذمہ دار ہیں. اگر یہ بات کہی تو اس بات کا اور میر جعفر کا زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات سن رہے ہیں, آئین نہیں ٹوٹ رہا. نہیں میری بات سن لینا جی, میری بات سن لینا پلیز, بات بتائیے. اس طرح کے آئین تو ماضی میں کتنے مرتبہ ٹوٹا. نواز شریف نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. اچھا, یہ میرا پوائنٹ. الزام لگایا, الزام انہوں نے بات گجرانوالہ میں کی ہے, الزام صحیح تھا, بات ایک مہذب طریقے سے بات کی ہے, اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا گیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. رحم تو پھر آپ لوگوں پہ ہوا, رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر. کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لندن جانے کی اجازت ملی, رحم نہیں ہوا کیا؟ یہ میری بات سنیں, وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت میرے کہنے پہ, سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی, آپ کے کہنے پہ دی گئی. This is the undertaking that you آپ بات kindly سنیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify or confirm about this. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے. اس کی اجازت, nobody cares about this. نہیں بٹ آپ میری بات, یا تو میری بات سنیں. Please go ahead. اس کی اجازت عمران خان کی کابینہ نے دی, آرمی چیف نے نہیں دی. مہربانی کر کے یہ بات انڈرٹیکنگ کورٹ نے مانگی, دی میں نے, دی نا 50 روپے کے اوپر. جی 50 روپے کس دی میں نے. کتنے سال بعد, اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں کتنے سال بعد میاں صاحب واپس آئے؟ نہیں, جب ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ ناؤ یو کین ٹریول, تو وہ تشریف لے آئے. He was traveling all around the world. He was going to Europe. No, he was going to Dubai. آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر یہ آج اس بات کو پکڑ لیں گے, نواز شریف کے وہ جو تھے پیلٹس, platelets. Sorry, platelets. Thank you very much for correcting me. Pellets تو اس میں gun. Sorry, yes, I'm very grateful to you. Platelets. ان کا اپنا اس لیول حد درجہ کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پر یعنی انسان زندہ نہیں رہتا. اچھا, گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, عمران خان کی چیف جسٹس جو تھے عمر بندیال وہ چلے گئے, ایک نئے آرمی چیف آ گئے, اینڈ نواز شریف صاحب از ایبسولوٹلی فائن اینڈ ہی کمز بیک. پاناما میں نام نہیں تھا ان کا, اقامہ میں لے کے ان کو سزا دلوا گئی. وہ ٹائمنگ دیکھیں. آپ کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سڈنلی حکومت چینج ہوتی ہے, فرد جرمائد ہونے لگی تھی آپ کے اوپر اور بیٹے کے اوپر. حکومت چینج ہوتی ہے, ٹی ٹیز کے سارے الزامات جو کہ اربوں روپے کے اندر جا رہے ہیں, مطلب یہ تقریباً 506 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. کوئی کرپشن نہیں ہوئی. اپنا یہ استغاثہ کوئی
साबित नहीं कर सका। ये नवंबर You deny these TTs were coming into your account? अब एक टीटी मेरे अकाउंट में आ जाए। आपकी बात नहीं कर रहा। मैं बेटे की बात कर रहा हूँ, सर, मैं एलिया की बात कर रहा हूँ, बेटियों की बात कर रहा हूँ। प्लीज ना अब जरा बात कर लें। आई डिनाई, नॉट ऑन डिनाई, वेहेमेंटली आई रिफ्यूट कि अगर मेरे अकाउंट में कोई टीटी आई है, आई विल क्विट पॉलिटिक्स नाउ। हमजा के अकाउंट में आई? उनसे पूछें आप कि वो दे आर इन बिजनेस। This is प्लीज you're his father. नहीं वेट मिनट, आई एम नॉट रिस्पांसिबल। मैं Not responsible. प्लीज मेरी बात सुनने। एनसीए ने क्या कहा? एनसीए ने कोई यहाँ पर That's a different case. That's a different case. एग्जैक्टली द सेम केस। डिफिट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। डिफिट का जिक्र आपने ये देखिए ना, ये बात है। If it is a different case, नो नॉट एट ऑल। उन्होंने क्या ये अनअकाउंटेड फॉर टीटीज आ रही हैं। सलमान के अकाउंट में, हमजा के अकाउंट में, आपकी वाइफ के अकाउंट में। डेली मेल ने क्या लिखा? आई डोंट केयर व्हाट डेली मेल। आई डोंट केयर अबाउट डेली मेल इज नॉट एन अथॉरिटी ना। डेली मेल को अपने आप अपने प्रोग्राम में डिड आई कोट डेली मेल? आप अपने प्रोग्राम में लेके आते रहे। नहीं, मैंने कब लिए? कई दफा उसकी दिखाई नॉट मी सर। नहीं, सर, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया। जो रिपोर्ट आपके बारे में, पॉइंट ये है कि मेरे खिलाफ आप अगर करप्शन और चाहे वो अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बता दें, आई क्विट पॉलिटिक्स। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप इसका मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। आपने कहा जी आप हमजा से पूछे जाके वो टीटीज क्यों आई? नहीं, आप 14 कंपनीज में आपकी फैमिली डायरेक्टर है। उस जज का प्लीज, उस जज का फैसला पढ़ लें। किस जज का फैसला? जिसने ये फैसला किया। आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने लगी थी, आपकी हुकूमत आती है, सारी प्रोसीडिंग्स बंद हो जाती है। नैब का प्रोसिक्यूटर आता है, वो कहता है जी हमें कोई मसला नहीं। एक सेकंड, यू डोंट नो ये टीटीज आई कि नहीं आई? चलें इस तरह कहते हैं। मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। आपका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। हमजा शुड बी आंसरेबल। मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। आपने तोशा खाना का जिक्र किया कि जी तोशा खाना जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बड़े इस तरह के इल्जामात लगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये बात दुरुस्त नहीं है, 100% दुरुस्त है। किसकी बात करें? इमरान, मैं तो मियां साहब की बात कर रहा हूँ। ये मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? मर्सिडीज गाड़ी 2008 में, ये भी तोशा खाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉटरी हुई थी। ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशा खाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुने, ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज लिसन टू मी। दिस इज द लिस्ट। अगर ये गाड़ी आप कहते हैं ठीक आई है, ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पेशल जो है वो ऑर्डर निकाला और उनको क्लियर कर दिया, जबकि एक्चुअली तोशा खाना के रूल्स हैं। ये कैबिनेट डिवीजन का मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये 25 जून 2007 का है और इसका पॉइंट नंबर 11 कहता है, आपको Listen to me, just listen to me. Antique items and vehicles shall not be allowed to be purchased by the recipients. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. ये 2007 के रूल्स हैं। कानून अपना रास्ता बनाएगा। नहीं ले रहा ना। क्यों नहीं? कानून नहीं ले रहा। That's the surprising thing. कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं कह रहा हूँ कानून अपना रास्ता लेगा, अपनाएगा, और जो कानून फैसला करेगा हम सबको मंजूर होगा। लेकिन एक शख्स जो चोर डाकू कहता था सबको, आज सबसे बड़ा चोर डाकू खुद निकला। I'm not concerned about him. I'm concerned about you, ना? I'm concerned about you. आप बताइए कि ये ट्रांसपेरेंट इन्फ्लुएंस रिपोर्ट क्या है? मैंने ये It's not a certificate. It's about you. नवाज शरीफ, ये to his government and to this humble soul. Where is this car? And to our party. Where is this car? And to our country. Where is this car? ये मर्सिडीज गाड़ी किधर है? बात सुनिए ना। Have you asked your brother ये गाड़ी किधर है? नहीं, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आपके बारे में बताइए, आपका जब दौर था जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। I'm talking about इमरान रियाज खान, not मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया का सॉरी, वो जो हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे अरशद शरीफ, उनको उनके बारे में केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने खुद फोन किया। I'm talking about इमरान रियाज खान, not अरशद। इमरान रियाज अगर उठा है तो मुझे आप बताएं। You were the prime minister. जी, You were the prime minister. तो बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ, बिल्कुल कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं। किधर थे वो? मुझे नहीं पता कहाँ थे, लेकिन वो बहरहाल वो उसी जमाने में हो गए थे। तो मैं उसी जमाने में हो गए थे। एक जर्नलिस्ट गायब हो रहा है सर आपके दौर में। मेरे जमाने में तो एक हुआ ना। एक नहीं हुआ, लोगों को नौकरियों से निकाला गया। वो वापस आ गए। आपने देखा किस हालत में आए? वो वापस आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं कल का एक बयान सुन रहा था। ये इमरान खान साहब के हवाले से इद्दत में निकाह का जो केस है, उन्होंने कहा दिस इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल एंड वी कैन नॉट सपोर्ट दिस। आपका इस पे क्या स्टांस है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये अदालत का फैसला है। आई विल नॉट। यू विल नॉट कंडेम इट? You will not condemn. I will not interfere in this. ये अदालत का फैसला, I will not interfere. The reason I'm asking this is कि ये इतने पर्सनल लेवल पे चला गया है। जी। It was shameful. मैं आपको absolutely shameful. आप उस जज का इंटरव्यू करें।
किस जज का? जिसने ये फैसला जज इंटरव्यू दे नहीं सकता 2 साल। नहीं दे सकता। आपसे जब रिटायर होगा पूछ लीजिएगा। माय स्टैंड इज कि आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। You know why I'm asking this? शरीफ खानदान के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता है कि आप लोग अपने ओपोनेंट्स के हवाले से पर्सनल हो जाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जिस तरह फेंकी गई और अब ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है। शरीफ खानदान का ये खतरा रहा कि नवाज शरीफ के दौर में एक सियासी कैदी ना वफाक में ना पंजाब में गिरफ्तार हुआ। I was expecting you to condemn this. होश के नाखून। I was expecting आप condemn करेंगे इसको। आप condemn तक नहीं कर रहे। You said go and talk to the judge. Why should I talk to the judge? I have said what I have said. I'm talking to the potential candidate for prime minister right now. I am not going to interfere with the decision of the court. ये कल को ये आपकी फैमिलीज के साथ भी हो सकता है कल को इस तरह। मैं हो चुका। आप लोगों के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दे आर नॉट लेस देन अ जोक। ये आप जो बात कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ के मुताबिक नहीं। अच्छा, किस तरह? अगर भला होता हमें और मेहनत करते और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला माजी में भी किया। 2013 में भले का मुकाबला किया। आपकी पार्टी के अंदर शरीफ खानदान का ऐसा होल्ड है कि आपके बच्चे सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा, आपका साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी वो छोड़ के चला गया, नाराज हो गया। जावेद हाशमी आपकी पार्टी की सदारत करते रहे। अभी कल रात को उनके घर के ऊपर रेड हुई है। ये हाल है इस वक्त पार्टी के लोगों का। This is what's going on. But your children and नवाज शरीफ children उनको तरक्की मिलती जा रही है। बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें। अगर वो चले गए हैं छोड़ के, क्यों चले गए हैं ये आप उनसे पूछें। नाराज है आपसे? नहीं, क्यों किस बात पे नाराज है उनसे पूछे ना। वो कहते हैं मैं मरियम को सलूट नहीं कर सकता। ये बात ये कहना कि सलूट करना ना करना मैं ये बात यहाँ पर नहीं करना चाहता। बात साहब यही तो मसला है कि या तो मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब होते हैं, या आप होते हैं, या मरियम होती है, या हमजा। अभी आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मेरी बात सुन लें। वाई? नहीं, मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी बात सुन लें। मैं अपनी बात करूंगा तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपके होते हुए बेटा सीएम बन रहा है, वो मेरिट है? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने प्लीज, बात सुने। हमजा वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं मरियम की साइड पे नहीं जाता, लेकिन हमजा आपके साथ जाते हैं। सवाए इसके कि वो आपके नाम के साथ अटैच्ड हैं, इसके अलावा क्या उनकी खुसूसियात है जिसमें मैं कहूँ कि हाँ जी हमजा डिजर्व्स टू बी द सीएम या हमजा डिजर्व्स टू बी द ऑपोजिशन लीडर? बताइए। आई हैव टोल्ड यू, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उन्हीं का हक बनता था ना। ही वाज द वन। हरीफ जो हैं जो आपसे अपोज करते हैं वो एक और इल्जाम ये भी लगाते हैं कि जनाब इनका पैसा, इनके बच्चे, इनका खानदान ये लोग बाहर रखते हैं, पॉलिटिक्स यहाँ पे आके करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सवाल किया कि मेरा पैसा खुदा न खास्ता या नवाज शरीफ का पैसा या उनका बाहर पड़ा होता तो क्या वो हमसे नहीं पड़ा हुआ? नहीं, मुझे बात सुन लें। आपके कितने एसेट्स हैं इस पर? मुझे सब कुछ डिक्लेयर। आपको अपना भी नहीं पता? नहीं, that's not It's on record. You need to know this ना। Everything. You ask me, मैं I'll tell you मेरे भी कितने गाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं। आपको मेरे जो everything is declared। 2019 की मेरे पास कुछ डिटेल निकली, आपके जो ऐसे डिटेल्स हैं 670 कनाल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपका एक घर जो है वो यूके के अंदर भी शो हो रहा है। You accept that or not? Declared. नहीं, I accept that. मैंने कब किया? But you accept it कि नहीं? अभी भी है? I do. यूके में है अभी भी घर? Absolutely. एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप You should not ask please. This is unfair in your part. I told you. A case जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। अनफेयर क्वेश्चन है भाई। मैंने आपको ये जवाब दिया। बट ठीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। एवनफील्ड के पार्टनर किसके? नो आइडिया। गॉट इट। मलिक रियाज ने अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन जो है वो बतौर रिश्वत दी है ना। दिस इज योर केस। हम तो ये समझते हैं। ये आप समझते हैं? पैसा जिनका भी है, चाहे वो है या जो भी है, जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि एक्चुअली नाम उसमें उनका नाम नहीं। नाम तो लेते मलिक रियाज का। नहीं, मलिक रियाज का नाम आपने एक बार 10 मिनट आप नहीं ले रहे ना। क्यों नहीं ले रहा मैं इसीलिए तो हैरान हूं। जो नाम है, सारी कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान पे, मलिक रियाज पे नहीं है। जो नाम है, बात सुन लें, जो नाम, उन नामों को आप देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी मलिक रियाज के साथ जो है वो आप लोगों ने, शरीफ खानदान ने ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की लंदन के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन बात ये है, अगर एक आदमी करप्ट है, करप्शन सिर्फ इमरान खान तक तो नहीं है ना, मलिक रियाज तक भी है। लेट्स लुक एट द कैमरा, लेट्स लुक एट द कैमरा एंड से आज से शरीफ खानदान या नून लीग का मलिक रियाज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। बिजनेस ट्रांजैक्शन होना, उसका करप्शन से क्या ताल्लुक? ऐसे अगर एक रिश्वत खोर है, ये रिश्वत देने वाला शख्स है, शहबाज शरीफ द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नवाज शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद अ गाय लाइक दैट, है ना? बट एट दैट पॉइंट इन टाइम, नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन, मैं आगे की बात कर रहा हूं। एट दैट पॉइंट ये तो आदमी थे। सर मैं कह रहा हूं कि आगे की बात, तो आगे की बात यही है, सुन लें। फैसला